balance से मुकरा. My story name is हेसल और ग्रेटल. एक गरीब लकड़हारा के दो बच्चे थे जिनका नाम हेसल और ग्रेटल था. एक दिन उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आने के लिए अपने पति से रोज झगड़ा करती थी. एक दिन तंग आकर वह बच्चों को जंगल में छोड़ आया, लेकिन हेसल ने रास्ते भर सफेद पत्थर फेंकते हुए आया था. उन सफेद पत्थर के सहारे वो दोनों अपने घर पहुंच गए, लेकिन उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चों को और भी घने जंगल में छोड़ आई. लेकिन हेसल ने रास्ते भर रोटी के टुकड़े फेंकते हुए आया था, लेकिन पक्षियों ने उसे रोटियों को खा लिए थे. घर जाने का रास्ता नहीं मिला. वो दोनों जंगल में घूमने लगे. उन्हें एक भालू दिखा. वो भालू बोला, अरे तुम कौन हो? तो वो बोले, मैं हेसल और ग्रेटल हूँ. भालू ने बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा. भालू हेसल और ग्रेटल ने बोली कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी और आप Thank you and have a nice day. Do clapping for him. Start. सुप्रभात सभी को. मेरा नाम माहेश्वरी विश्वकर्मा है. मैं कक्षा चौथी अ से हूँ. मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ईमानदार लकड़हारा. एक लकड़हारा एक बड़ा सा वृक्ष तोड़ रहा था. तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी पास के नदी में जा गिरी. तो वहाँ पे एक माता देवी रहती थी. उस माता देवी ने उस लकड़हारे को रोने का कारण पूछा. माता देवी ने सबसे पहले एक सोने की कुल्हाड़ी लाई. लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. फिर माता देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी लाई. पुनः लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. आखिर में माता देवी ने लकड़हारे को उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी लाई. लकड़हारा आंसू पूछते हुए कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है. और ऐसे ही वह लकड़हारा एक धनवान व्यक्ति बन गया. धन्यवाद. कहानी का मॉरल. हमें हाँ बोलो. ईमानदारी का फल मीठा होता है. Very good. Do clapping. Good morning everyone. My name is Francis Kumar. Today I am going to tell a story. My story name is The Thirsty Crow. Once upon a time, there was a thirsty crow. The crow was very thirsty. They go for searching the water. They search everywhere, but couldn't find the water. They see a well. They laugh and go near the well. Well, they see the well is no water. They started crying. They see a pot near the well. They go near the pot. Pot has some water, but the water was very deep. The crow didn't drink water. They see some stones near the pot. They take the stones and throw in the pot. They throw all stones in the pot. The water comes up and the crow drink water and flew away. The crow hardworking and get water. Thank you. Moral of the story. फिर से बताओ. The moral of the story is that crow doing hard working and they get water. Thank you. Very good. I study in class 5th. Today I present a story. Name is The Wolf and the Crane.
Once upon a time, there was a wolf. One day he was hunting his prey. As usual, Sir, one vulture was approaching, so instead of taking his time to eat, he quickly gulped down a mouthful. Unfortunately for the wolf, for the bone struck in his throat. Thank you. Moral of the story, beta? Okay, very good. Good morning everyone. My name is Komal Shinde from class 5th B. Today I am going to present a story. My story name is The Decision of Panchayat. I hope you listen carefully. Once upon a time there was a farmer. He lived in a small village. He had 2 fields. He used to work very hard. When he prospered, he bought another field. There is a well next to it. He bought the well from his neighbor. The neighbor is cunning man. He thought a plan to cheat the farmer. The next day, when the farmer reached the farm, he found the neighbor standing there. He refused. He did not take the water from the well. On asking why, he replied, "I sold you well, not the water. The water belongs still with me and you cannot take the water." The worried farmer didn't know what to do. So he went to the village chief. The village chief, the farmer told about the case and said, "He not letting me to take the water from the well." The village chief fixed a day for the meeting of a panchayat. The day came. The members of panchayat gathered under the banyan tree in the center of the village. Both farmer and neighbor also summoned. Most people were present. The farmer explained situation together. The village chief asked to the neighbor, "Why you cannot let him to take the water from the well?" The cunning man said, "I sold him well, not the water. The water belongs still with me and he cannot take the water." The members of panchayat and villagers so tired reasoned with him, but he adamant. Finally, the members of panchayat discussed among themselves and stood up to give the judgment. The villagers also stood. The villagers also stood up. The village chief began. After hearing both sides, we agreed to say that only well is sold. The neighbor gave the satisfied smile. However, continued the village chief, "If you have not sold water, then the water can be yours and you have not business to keeping the water in his well. Remove the water and use it immediately. If no, the water goes to the owner of the well." The farmer reviewed the shout of joy. The neighbor realized that cheating is not lead anywhere. The moral of the story is cheating will not lead anywhere. Thank you and I have fantastic day. My name is Arushi Sudarshan Swami from class 6th. Today I am here to tell one short story to you. The title of my story is The Boy Who Cried Wolf. So friends, listen carefully. Once there was a shepherd boy in the village. He had a flock of sheep to look after. One day he thought one plan to fool the all villagers. He decided to joke with the villagers. He said, "Help, help, wolf, wolf." All the villagers came with weapons to help him. But when the villagers came to this, they did not see any wolf there. Again, after some days, the boy again said, "Help, help,
Do clapping. प्रभात सभी को, मेरा नाम श्रुति, मैं कक्षा 7वीं अ की एक छात्रा। मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे कहानी का नाम पुस्तक की दोस्त। एक बार एक लड़का अपनी माँ के साथ पुस्तकालय गया और वहाँ पुस्तकें ही पुस्तकें थी, रंगीली, रोचक और ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें। उसने एक पुस्तक उठाई और सोचा, क्या यह पुस्तक मुझे समझ आएगी? तभी उसके पैरों के पास एक पुरानी धूल से ढकी एक किताब आ गई। तब उसने वो पुस्तक उठाई और पहला पन्ना खोलते ही पन्ने दर पन्ने वो पलटता गया और उस कहानी में खो गया। तब फिर उसने सोचा कि पुस्तक हमारे दोस्त होते हैं। मैं आप सभी को संदेश देना चाहूँगी, पुस्तक हमारे दोस्त होते हैं और पुस्तक हमें कुछ नई बात सिखाते हैं। थैंक यू। Everyone, by their marks, position or appearance, everything is fighting a battle you cannot see. Thank you. मेरा नाम हरिओम साना, कक्षा 7वीं ब का छात्र, आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे कहानी का नाम सूर्य का विवाह है। गर्मी का दिन था। पृथ्वी पर अचानक से सारे लोगों में एक खबर फैल जाती है कि सूरज का जल्दी विवाह होने वाला है। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मेंढक भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पानी में उछल कूद करने लगते हैं। पर तभी एक बूढ़ा मेंढक पानी के ऊपर आता है और सारे मेंढकों को समझाने लगता है कि यह प्रसन्नता का नहीं बल्कि दुख की बात है। मेरे साथियों, आप इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो? यह प्रसन्नता की बात नहीं है। जरा सोचो, अगर एक सूरज हमें अपने गर्मी से इतना झुलसा रहा है तो वही सूरज के अगर दर्जन भर बच्चे हो जाएंगे तो वो हमें कितना झुलसाएंगे। हमारा जीवन में कई गुना कष्ट आ जाएगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इस कहानी की शिक्षा है कि हर अच्छी चीज अच्छी नहीं होती, उसे हमें गंभीरता से सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत माली और मैं कक्षा 7वीं ब का एक नियमित छात्र हूँ। मैं आपके सामने आज राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अंतर्गत समय की कीमत पर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, राजगढ़ में कुस्मित नाम के एक राजा थे जो काफी ही दानी थे और हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। और उसी गांव में एक गरीब था जिसका नाम गौरव था। वो एक जवान था और लोग उसे कहा करते थे कि तुम इतने जवान हो तो भी तुम कुछ काम नहीं करते। इसी बात को लेकर राजा उसके पास पहुंचे तो उसे राजा दिखे तो गरीब वो राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, लोग मुझे पीठ पीछे कहते हैं कि तू कुछ काम नहीं करता। इस बात को देखकर राजा ने कहा कि तुम सूरज ढलने से पहले मेरे महल में आओ, मैं तुम्हें सोने चांदी से भरा हुआ एक बैग देता हूँ जिससे तुम खुश रहो। मैं गरीबों को दान करता हूँ और तुम सूरज ढलने से पहले ही आना। इस बात को देखकर गरीब खुशी के मारे उछल गया और वो अपनी माँ को जाके बताने लगा ये बात। माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने कहा कि जाओ जल्दी जाओ, वरना सूरज ढलने से पहले तुमको पहुँचना ही है उधर। इसी बात को लेकर गौरव ने कहा कि अभी तो बहुत समय है, मैं अब पहले भोजन ग्रहण करूंगा, उसके बाद महल में जाऊंगा। उसने भोजन ग्रहण किया। इसी बात को देखकर उसे नींद आने लगी। उसने बोला थोड़ा सा विश्राम हो जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उसने विश्राम किया। उसके बाद वो 2 बजे उठा और कहने लगा, अरे बहुत देर हो गई, अब क्या करूं, कहीं सूरज ढल ना जाए। वो भागता भागता गया महल की ओर और इतनी गर्मी की चक्कर में उसकी शरीर में पसीना ही पसीना हो गया। वो बोला थोड़ा और बैठ लिया जाए पेड़ के नीचे और थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, अभी तो बहुत समय बचा है। वो पेड़ के नीचे बैठा और 4 घंटे लगातार सो गया।
इसको देखकर वो जल्दी से उठा। अरे नहीं, सूरज तो ढलने ही वाला है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। वो जल्दी से भागता भागता गया, पर महल में देखा तो महल का दरवाजा तो बंद हो चुका था और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और समय एक मूल्यवान संपत्ति है जो हर किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिलती है वो काफी ही खुश नसीब होता है। धन्यवाद। Do clapping. सुप्रभात सभी को। मेरा नाम नयन है। मैं कक्षा 7वीं ब में पढ़ता हूँ और आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मेरे कहानी का शीर्षक है बूढ़ा अक्लमंद हंस। ये बात एक जंगल की है जिसमें एक पेड़ हुआ करता था जिसपे बहुत सारे हंस रहा करते थे। उनके बीच एक बूढ़ा हंस भी था। एक दिन की बात है, वहां से नीचे से एक लता पेड़ के ऊपर उग रही थी। तब वो बूढ़ा हंस उन सारे हंसों से कहता है कि ये जो लता है एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर एक शिकारी आकर हम सबको मार डालेगा। लेकिन फिर सारे हंस कहते हैं शायद इन पे बूढ़े का असर होने लगा है, लता से तो हमारा पेड़ और सुंदर दिखने लगेगा। उनकी बात कोई भी नहीं सुनता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन वो लता इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई भी इंसान उसके ऊपर चढ़ सके और सारे हंस एक समय पे खाना लेने के लिए बाहर गए होते हैं और एक शिकारी आता है, वहां पे एक जाल बिछा देता है। तभी सारे जब हंस वहां पे आते हैं वो उस जाल में फंस जाते हैं। सारे हंस बहुत परेशान होने लगते हैं। सारे हंस एक एक करके वहां पे जोर लगाने लगते हैं उस जाल को हटाने से। तभी सारे हंस को फिर लगता है इसमें वो बूढ़ा हंस ही कुछ कर सकता है। सारे अपनी मुंडी हिलाकर उस बूढ़े हंस की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं अब आप ही है जो हमें बचा सकते हैं, क्या आप प्लीज हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो बूढ़ा हंस कहता है यही थी कि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था कि वो लता बड़ी हो जाएगी। फिर वो एक प्लान बना के वो सारे हंसों से कहता है कि हम सारे मिलकर अगर दम लगाएंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारे मिलकर दम लगाते हैं और वो जाल फूट जाता है और वो वहां से भाग जाते हैं। तो मित्रों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर बहुत सारा परिपक्वता रहता है और चाहे हम कितने बड़े हो जाए और हमारे अंदर किताबों का बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन हम अपने शिक्षक, माता पिता या बूढ़े इंसानों जितना परिपक्वता या अक्लमंदी नहीं कर सकते। उनकी हमेशा इज्जत करो। धन्यवाद। प्रभात सभी को। मैं साइली कक्षा 8वीं अ से आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है बांस का पेड़। एक लड़का था, वह सफलता प्राप्त करना चाहता था। वह हर रोज परिश्रम करता पर उसे लग रहा था कि उसके परिश्रम का कोई फल नहीं दिख रहा। वह निराश होकर अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को अपनी व्यथा बताई। गुरुजी ने उसकी व्यथा सुनी और उसे अगले दिन आने के लिए कहा। जब वह अगले दिन गुरुजी के पास गया तो गुरुजी उसे एक जंगल में लेके गए। वहाँ एक बांस का बीज दिखाया और कहा कि यह बांस का बीज बोने के बाद 5 वर्षों तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन 5 वर्षों के बाद इसे जब हम पानी देते हैं तो 5 वर्षों बाद यह कुछ ही महीनों में 70 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। तो उस लड़के ने उलझन में पूछा तो 5 वर्षों तक यहाँ पे क्या हो रहा था। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि 5 वर्षों तक यह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। इंसान भी ऐसे ही होते हैं, वह परिश्रम करते रहते हैं, उनका परिश्रम दिखाई नहीं देता पर वह अंदर से आने वाली मुसीबतों और मुकाबलों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वह लड़का समझ गया कि सफलता की परिश्रम करते रहना चाहिए, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस धैर्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यह है कि सफलता देरी से ही क्यों ना हो लेकिन मिलती जरूर है, बस हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। धन्यवाद। Do clapping. Today I am here to present a story on the value of time. What is time? Time means time is like a river that never stops flowing. If you waste your time,
then it never comes back because the time is important for everyone. If you spend your time on learning, helping or doing good activities, you will never regret. You will become a bright and a strong person. But if you waste your time on on laziness and not doing the work, you will regret, and then your time is wasted. But the time never comes back. And the great people who are like Abdul Kalam and more, they respect time and become a very successful person in their life. Conclusion: the moral of the story: value the time because time never comes back. Thank you. Do पुस्तकालय दिवस वीक के अंतर्गत मैं यहाँ पर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है पुस्तक का महत्व। एक गांव में लीला नाम की एक लड़की रहती थी। उसे पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपनी पसंदीदा किताब खोलकर पढ़ने लगी। तभी पुस्तकालय वाले ने कहा कि पुस्तकालय कुछ दिनों में बंद होने वाला है, क्योंकि पुस्तकालय में कोई भी पुस्तक पढ़ने या पुस्तक लेने के लिए कुछ नहीं आ रहा था। तब लीला पुस्तकालय में गई और पुस्तकालय के मालिक से कहा कि पुस्तकालय बंद ना करे, लेकिन मालिक ने कहा नहीं, इसमें कोई नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पुस्तकालय बंद कर दूंगा। लेकिन लीला अपने माँ के पास गई और उससे कुछ उपाय पूछा। तब माँ ने उसे एक उपाय कहा और अगले दिन लीला वहाँ पर पुस्तकालय में जाकर उसने एक पुस्तक ली और चौराहे पर जाकर अपनी पुस्तक जोरों से पढ़ने लगी। कुछ इच्छुक लोग वहाँ पर बैठ आकर उसका पुस्तक पढ़ना सुन रहे थे। अगले दिन लीला ने फिर से वही दोहराया। वहाँ पर कुछ और लोग आए और ऐसे करते करते उसने एक हफ्ते में पूरे 100 लोग जमा कर लिए। और अगले दिन वो उनसे कहा कि यहाँ पर आने की बजाय तुम अपनी खुद की पसंदीदा पुस्तक लो और पुस्तकालय में से पढ़ो। सब लोग पुस्तकालय में गए और वहाँ से पढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद सब पूरा गांव वहाँ पर आकर पढ़ने लगा। लेकिन एक दिन के बाद पूरा गांव लीला के घर आया और कहा, लीला, तुमने हमें पुस्तकों का महत्व समझाया है और अब हम सब पुस्तक पढ़ने लगे हैं। पुस्तक के वजह से अब हमारा ज्ञान और हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पुस्तक ही हमारे जीवन में परिवर्तन और ज्ञान में सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद आपका। बेटा ओके, वेरी गुड। सुप्रभात सभी को, मेरा नाम वैष्णवी वर्मा है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। इस कहानी का नाम है घमंडी पेड़। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में 2 पेड़ थे। ये दोनों भी बहुत विशाल थे। एक बहुत अच्छा था और एक बहुत ज्यादा घमंडी था। एक दिन एक घमंडी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया घोंसला बनाना चाहती थी, तो वो तिनके लाकर उसके ऊपर इकट्ठा करने लगी। लेकिन उस घमंडी पेड़ ने कहा, अरे अरे, तुम मेरे ऊपर कहाँ पर तुम्हारा घोंसला बना रही हो? तुम्हें घोंसला बनाना है तो उस पे जाके बनाओ। तो फिर चिड़िया ने कहा, पेड़ भाई, आप तो हमें सहायता करते हो हमारा घर बनाने के लिए। तो फिर पेड़ ने कहा, मैं कोई सहायता नहीं करता हूँ। जो तुम्हें घर बनाना है तो तुम उसके पास जाके बना सकती हो। तो फिर उस चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं कहती हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ा अफसोस होएगा आगे चल के। तो फिर वो चिड़िया उड़ के गई और उस अच्छे पेड़ के ऊपर घोंसला बना दिया उसने। उस अच्छे पेड़, वो अच्छा पेड़ बहुत सुंदर दिखने लगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया भी बैठती थी और उसके चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे फूल भी उगाए थे। लेकिन वो घमंडी
हाँ जाओ। अपना घमंड अपने ऊपर ही भार होता है। होता है। ओके, वेरी गुड। ओके, कहानी में कितने किरदार थे? उसने कहानी बताई, कितने किरदार थे? हाँ जाओ। उनके नाम बताना है। क्या नाम थे? एक घमंडी पेड़, एक अच्छा पेड़ और एक लकड़हारा। वेरी गुड। डू क्लैपिंग फॉर हर। एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है प्यासा कौवा। एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। उसे बहुत ही तेज प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं में झांक के देखा तो उसमें पानी ही नहीं था। वह उदास होकर एक पेड़ पर बैठा था। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। वहाँ पे एक मटका रखा हुआ था। उस मटके में थोड़ा सा पानी था। उसने देखा तो उसकी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी। उसने बहुत सारे तरीके आजमाए लेकिन पानी आ ही नहीं रहा था। तभी उसको एक तरकीब सूझी। उसने एक इधर उधर के कंकड़ उठाए और उस मटके में डाले। तभी पानी ऊपर आया। वह पानी पीकर खुश होकर उड़ने लगा। इस कारण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोशिश करें तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। धन्यवाद। कहानी का नाम क्या था? ओके, तुम आ जाओ। Everybody should be alert, attentive. Okay, keep responding. प्यासा कौवा। Very good, very good. कहानी में कितने किरदार थे और उनके नाम क्या थे? नहीं, यहाँ आके हाथ ऊपर करके बताना है। ओके, तू आ जा। दो। क्या नाम है? कौवा और मटका। वेरी गुड। ओके, कहानी की सीख क्या थी? हाथ ऊपर करो। तू आ जा। नहीं देखी, सुनी नहीं। ओके, आ जाओ। कहानी सुनते वक्त कहानी के किरदार, कहानी में क्या बताया गया और कहानी की सीख। यू शुड नो द मोरल ऑफ स्टोरी। हमें कभी भी कोशिश करनी चाहिए। तू आ जा। कठिन से कठिन काम भी आसान पड़ता है। स्वामी है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है समय का महत्व। एक छोटे से गांव में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी और समय का महत्व नहीं समझता था। एक दिन उसके माता पिता बोल रहे थे, बेटा पढ़ाई करो, ये समय फिर से बाद में नहीं आएगा। ये समय चला जाएगा तो इसे तुम कभी वापस नहीं ला पाओगे। हर एक पल का लाभ उठाना सीखो। पर वो उसे लगता था कि ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं क्यों सुनूं इनका। और वो ऐसे भी सोचता रहता था कि मेरे पास तो अभी बहुत समय है तो मैं बाद में कर लूंगा। तो उसके माता पिता को लगा इसको हम शहर भेजेंगे तो ये अच्छे से पढ़ाई करेगा और समय का महत्व भी समझ जाएगा। एक दिन उसके माता पिता ने उसे शहर भेज दिया। वहाँ भी उसकी आदतें नहीं बदली। वो भी वहाँ भी आलसी रहता और दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। एक दिन उसके गांव में एक महाराज है। उसने कहा, महाराज मैं पढ़ाई में पीछे जा रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा कौन सा उपाय करना पड़ेगा जिससे मैं सबसे आगे बढ़ूं और स्कूल का सबसे होनहार बच्चा बनूं। तब साधु ने कहा, बेटा
तुम बहुत आलसी हो और समय का महत्व नहीं समझते और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालते रहते हो। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ जिससे तुम समझ जाओगे कि समय का मूल्य क्या होता है। साधु ने कहानी शुरू की। कहानी में पहले राजा था। एक राजा था। वो राजा जनता की भलाई करता था और सबकी मदद करता था। उसी गांव में एक छोटा सा एक गरीब इंसान था। वो बहुत घमंडी था और खुद का दुख दूसरों पर हमेशा डालता रहता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? खुद का दुख दूसरों पर क्यों डालते हो? वो बोलता है, लोग मुझे पागल पागल बोल के चिढ़ाते हैं और कहते हैं तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त लगाता हूँ, अगर तुम संध्या होने से पहले तुम अगर मेरे राजमहल में आकर जितना सोना चांदी हो सके उतना लेके जाओगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा। वो आदमी खुश हो गया और वो ठीक है महाराज, और वो घर चला गया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। और उसके पत्नी ने कहा, जाओ जल्दी से लेके आओ। तो उसने बोला, अभी बहुत समय है, मुझे खाना। तो उसके पत्नी ने गरम गरम खाना करके उसको दिया। उसने खाकर उसे नींद आने लगी तो वो सो गया। अभी तो बहुत समय है। तो वो सोचा, मैं 1 घंटे के लिए सोऊंगा। वो 2 घंटे के लिए सो गया। वो उठा और बोला, आपको बहुत देर हो गई, मैं जल्दी से भागते हुए जाता हूँ। वो जल्दी से भागते हुए जा रहा था तो ठंडी हवा चल रही थी तो उसे नींद आने लगी और बहुत पसीना भी आ रहा था। तो उसने सोचा, अभी बहुत समय है तो मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे सो लूंगा। पेड़ के नीचे बहुत खुली हवा चल रही थी तो वो वहाँ सोचा, थोड़ी देर के लिए सोऊंगा। वो 2 घंटे तक सो रहा और जैसे ही संध्या होने लगी वो भागते भागते राजमहल गया। पर तब तक राजमहल का द्वार बंद हो गया था तो वो निराश होकर घर आ गया। तो साधु ने कहानी खत्म कर उसकी तरफ देखा। उसके पास कोई शब्द नहीं था। वो साधु को प्रणाम करके घर आ गया और वो पढ़ाई करने लगा और समय का मूल्य भी समझ गया और वो अपने कॉलेज का सबसे होनहार और होशियार लड़का बन गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए बल्कि उसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। कहानी का नाम क्या था? नीचे बैठो, जिसको पहले चांस नहीं मिला वो देखेंगे। अब हर एक बच्चे को चांस देना है। समय का महत्व। ओके, वेरी गुड। कहानी में कितने किरदार थे? क्या नाम थे उनके? राजा, साधु, गौरव और उसकी माता और उसके पिता। दो आ जाए। कितने थे और नाम बताना? 6 हाँ, नाम बताओ। राजा, दरबार, होता है, वो तो लाइफ में राजा, गौरव, साधु, उसकी माता, उसके पिता और उसके दोस्त। फर्स्ट ए से क्या नाम है आपका? हाँ, आपके सामने प्रस्तुत है
नाम बताओ बेटा। लालची दूध वाला, ओके। ओवर टू श्रीनदी। एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था। वो बहुत ही लालची था। वह रोज नदी पार करके शहर में अपने ग्राहकों में दूध बेचता था। एक दिन शहर जाते समय वो नदी का पानी अपने दूध में मिलाकर अपने ग्राहक को बेचता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। देखते ही देखते वो अमीर आदमी बन गया। एक दिन अपने बेटे की शादी मनाने के लिए वो ग्राहकों के पास पैसे लेने गया। पैसे इकट्ठा होने के बाद उन पैसों से उसने नए कपड़े और नई गहने खरीदे। शहर से लौटते समय उसकी नाव एक पत्थर से टकरा और उल्टी हो गई। उसने देखा उसके सारे नए कपड़े नए गहने पानी में डूब गए। बेचारा उदास होकर रोने लगा। पानी में से एक आवाज आई, रोते क्यों हो? जो भी तुमने गवाया है तुमने बेईमानी से कमाया था। यह सुनकर दूध वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिक्षा, कभी भी लालच बुरी बात होती है। थैंक यू। कक्षा पहुंची और मैं पढ़ता हूँ। हाथी और चींटी। एक हाथी था और जंगल के जानवरों को बिना बात के परेशान किया करता था। एक दिन चींटी खाना ढूंढने जा रही थी। हाथी सो रहा था। चींटी के मन में आया कि हाथी को सबक सिखाने के लिए हाथी के सुर में चींटी घुस गई और हाथी चिल्लाने लगा, निकल जा निकल जा। फिर चींटी निकल गई। फिर इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसको भी परेशान नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मैं आज मिठाई की कहानी बोलने वाली हूँ। एक दिन गधे को मीठा खाने का मन। हाथियों को बोला कि मेरे को मीठा खाना है। भालू ने बोला शेर खा लो, गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने बोला गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। चींटी ने कहा गुड़ खा लो, गधे ने मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने कहा आम खा लो, गधे ने मना कर दिया। गिल्ली बोली हलवाई की दुकान। फिर गधे को ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर सब चल पड़े। थैंक यू। किसको भी ऐसा परेशान नहीं करना चाहिए। आज मैं अपने बचपन की बड़ी प्यारी सी कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा सदियों पुरानी, 200 साल पुरानी और बड़ी सियानी कहानी है। तो मैं बचपन में बहुत छोटा ही था, छोटी होने से। तो मुझे बचपन में मेरे अंदर से पता नहीं क्या ऐसा बदमाशी आती थी कि जब भी मैं किसी डॉग को देख लूँ मैं आराम से नीचे बैठता था। अच्छे से पत्थर निकालकर प्यारा सा जिससे ज्यादा लगेगा उसे लेकर उसे जोर से मारता था। तो ये कहानी है ऐसी सर्दियों की। मैं ऐसे ही 2-3 स्वेटर पहन के जा रहा था क्योंकि अगले दिन मेरा बहुत खतरनाक एग्जाम था। ABCD का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं बोला एग्जाम था, अगर मेरी मम्मी बुखार लग पड़ जाए इसकी घर का बाहर इसलिए बनाएगी। तो ऐसे ही मैं जा रहा था, बॉर्नविटा पी के आया था। सर्दी आती तो गर्म दूध पीने में मजा आता था। तो बॉर्नविटा पिया था। मैंने बोली सब एक ग्रुप से मेरी वहां से डांस पे जा रहा अपने ऐसे डांस पे थोड़ा चालू कि तभी आगे से डॉग मेरे को चाहती था। मैंने कहा अब आया काम होगा। मैं आराम से प्यार से नीचे बैठा और अपनी ऐसे पत्थर ढूंढने लगा। बढ़िया सा जैसे ऐसे करके प्यारा सा गोल से पत्थर लिया।
ये नु खिलाए नहीं, ये ऐसा नहीं, गोल से मिल गया, मजा आ गया, सब खिला भी ज्यादा बढ़िया मिलेगा। अब मैंने जैसे आगे देखा वो डॉग तो अलग भाग रहे, जैसे उसमें मैं केवी क्वार्टर्स में रह रहा हूँ। मैं क्वार्टर्स थोड़ा जंगल के आसपास, तो वो जंगल बहुत खतरनाक भी था क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर जंगली जानवर आ जाते थे। तो क्वार्टर के आगे दीवार लगा दी, उस दीवार के दरवाजे थे, मैं दीवार से साइड गया, दीवार से बाहर देखा, मिल गया। अब मैं बच्चों में बहुत यूट्यूब चलाता था, जैसे आप लोग भी चलाते होंगे। यूट्यूब के अंदर मेरे को क्या रील आती थी, कोई लड़की जा रही है वैसे वहां के बैग लगे हुए हैं, एक जाके जोर से चला गया, जब जो उसका पेट डॉग होता था वो हमसे भी अच्छे कपड़े पहन के अपनी खिलौने वाली गाड़ी में आता था, पीछे बैकग्राउंड दोनों बचा रहे हैं, वो आता था, उसको उसके पैर को रस्सी से बांध देता, वो बढ़िया से हसीन था, वो हॉस्पिटल ले जाता था। तो मैंने मानने लगा, मैंने पूछा ओए तुम तेरे पता है, तो उसने सुनी नहीं, मेरे को लगा सुनाई में नहीं आई, पास में समझ में नहीं आया, हमारे बात कहाँ सुने। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं पीछे से मुड़ा, मैंने कहा ये वो भी तो बनाने वाले जो चार से पकड़ेगा, क्योंकि वॉल्टर भी गया था, वो चार से पकड़ेगा। अब एक बात हो गई कि वो जो डॉग था जहाँ से वो जा रहा था उसकी साइड में एक गाड़ी भी खड़ी थी, हमारे सबसे क्लोज नेबर, हमारे सबसे क्लोज पड़ोसी की थी। उसने अपने बैक वाले कांच में नया स्टिकर लगाया था शिव जी का। वो शिव जी की जटा में, अगर आपने शिव जी की कहानी सुनी होगी तो उन्होंने अपनी जटा में गंगा माता को लाया था पृथ्वी पे, है? तो गंगा माता के निकालने के लिए छेद दी था उस टाइम पर स्टिकर में, मैंने छेद बना दिया पत्थर के, और डायरेक्ट वो जटा के बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर से छोटा सा छेद करके मेरे का पड़ गया। अब कोई भी ऐसे मासूम सा बच्चा अपने घर भागेगा, बोलेगा मम्मी मेरे कांच तोड़ी है, सॉरी ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बोला गलत हो गया, कोई गलत ऐसे फिर मम्मी मिल जाएगी, सॉरी सॉरी। लेकिन मैं सरकार से मासूम था, वैसे नहीं था, बचपन से मैं गया घर में सिंचन लगा, सिंचन नहीं मैं बोल गया, और मम्मी सिंचन लगा, मैं अपने को उसमें देख लूँगा, मैं बैठे बैठे ये सोच रही क्या होगा, कौन बात हो रही काली में, तो देखो मतलब स्टाइल भी ये बोल रही क्या होगा, कोई आएगा बताएगा, फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, बहुत भी हमारा मेडिटेशन करके मैंने आराम से सोचा, और सोच के ताश में ये कंक्लूजन निकाला, कोई उठा नहीं, क्या होगा, ऐसे कोई बच्चा खेले के कोई और आ गया, पर मेरे को नहीं पता था एक बार वो अपने आप को चलने वाली है। मैं तो यहाँ पर किसी चीज को, और मेरे पापा बाहर गए होते क्योंकि मेरा ना चचेरा छोटा भाई आता था, मेरे चाचा जी उनका बेटा है मेरे से छोटा है, तो उसे हमारे वहाँ पर चचेरा भाई बोलते हैं। तो अभी वो आने वाला था, मैं कुछ बड़ी से भूल ही गया उस बात को कि मैंने कुछ ऐसे करा, वो आ गया, वो जैसे आया पापा घर में, मैंने कुछ दौड़ने की ये अब उस टाइम पर वो भी बहुत यूट्यूब देखता था, पेट से भी खाना, क्योंकि आप सब जानते हैं छोटे बच्चे खाना खाते वक्त फोन मांगते हैं, जैसे कि आप लोग, मैं भी मांगता हूँ, ऐसा नहीं करती। तो उस टाइम ना एक बड़ी फेमस फिल्म चल रही थी, थोड़ा सा अगर आप लोग भी जानो तो उस फिल्म के अंदर तो कोई चल रहा है, या तो कोई सर पे मार दे या तो वो नीचे गिर जाए, एक तो बहुत जोर से आवाज आई, पीछे से बड़ी मधुर आवाज, पट्टा है यार, तो वो मतलब किसी को लगती है कहीं पर कोई गिरता वो ये चिल्ला दूंगा, जैसे इधर आप पट्टा है बोले क्या करता है, बोले कोई ऐसे खिला दो, तो वो आया, उसकी तरफ हमारा वो पड़ोसी आया जिनका कांच मैंने तोड़ा, वो देख के मेरे को मैंने कुछ गलत तो करा है इनके साथ, तो क्या करा आपने क्या दिया है। अब वो आया, मेरे को लगा ऐसे मिलने आए होंगे, जाके कहने वाले के फिर बीमार आए, हम भी चले, तो ऐसे मुझे भी लगा आए होंगे, मैं उस बात को भी छोड़ दिया। अब वो आए, हाँ बड़ी आपने बोला है, देखिए अंकल देखिए मेरे पापा बोलते हैं, सुनिए आपके बेटे ने भाई घर का कांच तोड़ दिया है। पापा ने भी इससे बोली से सुना, कहाँ से तोड़ी है, कहाँ लगता है तोड़ेगी, बोले शक्ल बचाइए, मैं भी साइड से पापा बोल दूँ, हाँ पापा थोड़ा शक्ल बच जाऊंगा, क्योंकि आ रहा है उससे। अब इस तरह से अगर आप लोग थोड़ा बहुत चाहो, मैं एक सोचे आप
थोड़े दूसरे लोगों में तब घूमते रहे घर को और संभालना। एक तरह वहाँ पर किचन में सो गए पूछे आप बताओ क्या खाओगे। जैसे कि मम्मी ने ये बोला तो बेटा बस में तो मेरा हाथ और मेरा गाल पापा का हाथ मैंने कोई ऐसे चेक करके मेरे भाई को पकड़ा जैसा मैंने बताया हमने क्लास में था ना और बोलने वाला हूँ जैसे ही मेरे को जोर से चाटा पड़ा मेरा भाई साइड से चला पता लगा जोर जैसे उसने ये चला मैं अब तो चाटा पड़ा तो रोएंगे लेकिन ये बड़ी चीज पूरी तो हंसेंगे तो मैं कैसे रोना था हंसते रोए जा रहा मैं ऐसे अब फिर मम्मी ने हाथ में तरफ करे दुआ सीखना ऐसे दो तीन चाटे खाने के बाद अपनी वापस आ गए और ये बात तो पता नहीं थी मेरी मम्मी वापस ही एक बार आई उन्होंने को पकड़ा आराम से बजा के बोली कि हम तेरे ताने मार मार के आज के बस खाने सौंगी तो ऐसे मुझे कोई कहानी पता चली तो लेकिन तो पूरी कहानी सब एक ही सीख मिल गया कि हम अपने पेरेंट्स से कोई भी बात नहीं छुपा सकते हैं वो हमारे माता पिता है और कई बार हम अपनी मम्मी से बात छुपा लेते हैं फिर अपने पता चल जाता है हम आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार मुझे आपको पता कैसे चला तो हमें हो गया बेटा माँ होना चाहिए तो ऐसे पूछना चाहिए तो बस वही बात यहाँ पर मिलाप हो जाती है और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका टेंशन देने के लिए थैंक यू। आपको कैसी लगी कहानियाँ? कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई? रेज योर हैंड और मुझे एक एक बच्चा बताएगा। हाँ बेटा आप बताओ। नहीं कहानी का नाम बताना है। कहानी का नाम क्या था? ओके कौन सी भैया की पसंद आई? भैया का नाम पता है? हर्षित भैया की पसंद आई। बहुत बढ़िया। तो पार्टिसिपेंट देख लो हर्षित ने ऑडियंस पे कैसे कब्जा कर लिया। तो कहानी बताते वक्त आपके फेस एक्सप्रेशन, आपके डायलॉग, आपकी एक्शन, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। तो कहानी बताते वक्त ऑडियंस इतनी शांत बैठे थी तो इन सारी ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां।